Multiple intelligence. What is multiple intelligence? Now, first of all, we will start from brainstorming. Think about for a 2 second, are you smart and how? Now, note it in your diaries or in any copy or in any page and think about it. Are you smart? In which sense? Are you smart? Are you think smart? Are you able to work smartly or what? So, after this slides, after this lecture, you will find out your intelligence, okay, are work, how you are working smartly. So, we all are smart in different ways. So, it's called the multiple intelligence theory. Multiple intelligence theory. What is background of this theory? That is the Dr. Howard Gardner in 1983 was created this multiple intelligence theory. Gardner theory places an emphasis on the idea that the traditional understanding of intelligence by mean of IQ testing is far too limited. IQ की टेस्टिंग को गार्डनर ने इस थ्योरी को क्रिएट किया था और आईक्यू की टेस्टिंग बताई थी हाउ आप किस तरीके से जो है वो आईक्यू को टेस्ट कर सकते हैं. टू broaden this notation of intelligence, Gardner introduced 8 different types. गार्डनर ने 8 टाइप्स की जो है वो इंटेलिजेंस बताई थी कि 8 तरह की जो है वो इंटेलिजेंस होती है. वन इज़ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, सेकेंड इज़ लिंग्विस्टिक, third is musical, fourth is spiritual, fifth bodily kinesthetic, naturalistic, interpersonal, intrapersonal. So these are consisting based of intelligence theory. Okay, these are 8 types of intelligence were present uh, in a person. Now we will move what is intelligence. Gardner defined intelligence is a problem solver, solve the problem or a problem, ability to solve problem, or fashion product that are valuable in one or more cultural setting. Fashionable products that are valuable in one or more cultural setting. किस तरीके से कल्चर्स की हम जो है वो अपने आप को सेट करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, किस तरीके से हम बिहेव करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस. नाउ each person may have different multiple intelligence. Even everyone can possess more than one of its. Gardner divided the multiple intelligence into 8 kinds. गार्डनर ने बताया था कि 8 टाइप के इंटेलिजेंस है और एक पर्सन में एक से ज़्यादा इंटेलिजेंसी प्रेजेंट हो सकती है. तो आइए अब हम स्टार्ट करते कौन कौन सी इंटेलिजेंसी हमारे पास. नेचुरलिस्टिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, स्पैचुअल, verbal linguistic, mathematical, interpersonal and intrapersonal. The most common is interpersonal and intrapersonal intelligence. It's Now we will start from verbal and linguistic intelligence. Ability to use word and language. ऐसे पीपल जो कि इनके पास एबिलिटी होती है कि वो वर्ड्स को यूज़ करें एंड लैंग्वेज को. These learners have highly developed authority auditory skills. Auditory means listening skills that are generally elegant speaker. They think in words rather than picture. Verbal and linguistic peoples जो हैं वो आपके पास वर्बली जो है वो ऑडिटरी स्किल्स के होते हैं. मतलब वो सुनकर जो वो थिंक कर लेते हैं, उनको पिक्चर की नीड नहीं होती.
इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यू माइट लर्न बेटर। अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। अब आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि इन 8 में से आपके अंदर कौन कौन सी इंटेलिजेंस कैरेक्टर मौजूद है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। नाउ वर्बल लिंग्विस्टिक के अंदर हमारे पास सबसे पहले रीडिंग है, मेमोराइजिंग है, ये रीडिंग करते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, प्लेइंग वर्ड्स गेम, स्क्रैबल, पासवर्ड, एनाग्राम्स एक्सेट्रा, यूजिंग द इंटरनेट से अपने आप को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। द सेकेंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये वाली जो इंटेलिजेंस है ये मोस्ट कॉमन नहीं है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो लॉजिकली और मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है, एबिलिटी टू यूज़ रीज़न, लॉजिक एंड नंबर्स। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। रीज़न आपको फाइंड आउट करना होता है, लॉजिक लेनी होती है और आपको नंबर्स आप जो है वो फाइंड आउट करते हैं। These learners think conceptually in logical and numerical pattern, making connection between piece of information. Always curious about the world around them, these learners ask a lot of questions and like to do experiments. अच्छा, ऐसे पीपल जो है वो लॉजिकली, न्यूमेरिकली और जो है वो पैटर्न्स को सॉल्व करते हैं। लाइक आपने देखा होगा हमारे मोबाइल में पैटर्न्स लगे हुए होते हैं, तो ये सारे जो लॉजिकली पीपल होते हैं ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये सब वही जो है वो मेंटेन रखते हैं या क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, कि जो कि पैटर्न्स हो गए आपके पास और पासवर्ड्स हो गए, नंबर्स के अंदर आपके पासवर्ड जो वो नंबर्स में होता है। देन ओके, अगर आपके पास ये वाली स्किल्स है तो आप किस तरीके से आप बेटर लर्न कर सकते हैं चीज़ों से। रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिकली, अगर कोई रिकॉर्डेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और सिस्टमेटिकली वन बाय वन, देन यू विल लर्न फ्रॉम दिस। प्लेइंग स्ट्रैटेजी गेम्स, आप गेम्स के थ्रू भी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हो। एनालाइजिंग डेटा को एनालाइज करके आप यूज़ कर सकते हो। आस्किंग लॉजिकल क्वेश्चंस, आप लॉजिकली क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हो। यूजिंग द इंटरनेट, आप इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द सेकेंड काइंड ऑफ इन मल्टीपल इंटेलिजेंस। नाउ द थर्ड इज़ bodily kinesthetic intelligence, ability to control body movement and handling object skillfully। मोस्टली पीपल, कुछ पीपल ऐसे होते हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, लाइक ड्राइविंग और इस तरह के जो पीपल होते हैं। अब इसके अंदर अब इसके अंदर देखिए हम पढ़ते हैं, दीज लर्नर एक्सप्रेस दैमसेल्फ थ्रू मूवमेंट, दे हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ये गेमिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉल प्ले, बैलेंसिंग बीम, थ्रो, इंटरैक्टिंग विद द स्पेस अराउंड दैम, दे आर एबल टू रिमेंबर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अब ऐसे पीपल कौन से पीपल होते हैं, ये वो पीपल होते हैं जो कि गेम्स में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और अच्छा, ये वाली जो काइंड है, ये जो अगर किसी स्टूडेंट के अंदर है तो वो आपको आप जो है उसको फ़ौरन से जज कर लेंगे कि बॉडी, मतलब ये खेल के सीखता है बच्चा, यानी कि आप इसको कोई एक्टिविटी करवाएंगे तो वो एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी के थ्रू बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। नाउ अब ऐसे पीपल की लर्निंग कैसे होती है या ऐसे स्टूडेंट्स लर्न किस तरह से कर सकते हैं। इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यू माइट लर्न बेटर डूइंग रोल प्ले, आप रोल प्ले के थ्रू आप जो है वो लर्निंग कर सकते हो। एक्सरसाइजिंग वाई रिवाइविंग, विजिटिंग म्यूज़ियम्स, इंस्टीट्यूशंस, पार्क, आस्किंग लॉजिकल क्वेश्चंस, आप इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, यूजिंग द इंटरनेट। नाउ द फोर्थ वन इज़ विजुअल स्पैचुअल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू परसीव द विजुअल। जो पीपल देख कर सीखते हैं,
या अपने पास्ट एक्सपीरियंस, आप इसमें बात भी कर सकते हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो जो है लर्न कर लेते हैं. दे लर्न टेन टू थिंक इन पिक्चर एंड नीड टू क्रिएट वाइड मेंटल इमेज टू रिटेन इंफॉर्मेशन. वो देख कर अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को रिटेन रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए. दे इंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज़. अब ये सारे पीपल मूवीज़ से कुछ लर्न करते हैं या वीडियोस आप उनको दिखा दें तो उससे वो जो है वो आप अब आपने देखना है कि आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस जो है वो करेक्टर मौजूद हैं, कौन कौन से हैं. इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग विजुअल इंटेलिजेंस यू माइट लर्न बेटर. अब अगर आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग है तो आप इससे लर्न कर सकते हैं. लाइक स्टडिंग पिक्चर, आप बहुत अच्छे से पिक्चर स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, विजुअल इंटेलिजेंस स्पेशल, ये आर्किटेक्ट्स को भी हम कह सकते हैं कि वो वॉचिंग वीडियोस और यूजिंग विजुअल टेंजिबल एड्स, डूइंग मेज पजल्स, मेकिंग प्रेडिक्शंस यूजिंग द इंटरनेट्स. इनके थ्रू जो है वो ये बहुत अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं. नाउ द म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ऐसे पीपल भी होते हैं जो कि अपनी एबिलिटी को, आपने देखा होगा बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जो कि अपनी एबिलिटी को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू म्यूज़िक. आजकल तो इस तरह से भी हो रहा है कि लोग जो है वो एक साउंड क्रिएट कर लेते हैं और उसके थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. तो वो ऐसे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होते हैं. लाइक मुंह से साउंड जो है वो आपने प्ले कर दिया. अच्छा, ठीक है. एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट म्यूज़िक, appreciate these musically inclined learner think in sound, rhythms and patterns. They immediately respond to music, either appreciating or criticizing what they hear. Many of these learners, they are extremely sensitive to environmental sounds. उनको environmental sound से जो है वो बहुत ज़्यादा sensitive होते हैं. लाइक crickets, bells, ड्रिपिंग टैब्स, जितनी भी बेल्स वगैरह हैं. तो इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग म्यूज़िकल इंटेलिजेंस यू माइट लर्न बेटर बाय लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग, talking to yourself, making up songs, mentally repeating information, reading aloud, changing tempo. बहुत सारे ये वाली जो इंटेलिजेंस है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो लाउडली रीड करके जो वो लर्न करते हैं. ये और ये ऐसी क्वालिटी जो लाउडली रीड करते हैं, ये जो हाफिज़ होते हैं ये उनके अंदर जो है वो ये वाली क्वालिटी होती है क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ पढ़ के रिपीटिशन से जो है वो वर्ड्स को जो है वो लर्न कर रहे होते हैं. नाउ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड अदर. ऐसी एबिलिटी कि आप रिलेट करें और अंडरस्टैंड करें दूसरों को, दूसरों से आप जो है वो अपने आप को अंडरस्टैंड करें. दीज लर्नर ट्राई टू सी थिंग फ्रॉम अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक एंड फील. ये पीपल दूसरों से सीखते हैं कि वो क्या सोच रहा है, उसने क्या किया या उसकी सक्सेस का क्या रीज़न है. देन दे लर्न फ्रॉम अदर्स. They often have an uncanny ability to sense feelings, intention and motivation. दूसरों से मोटिवेट होके ये सीखते हैं. दे आर ग्रेट ऑर्गेनाइजर. जनरली दे आर मेंटेन पीस इन ग्रुप सेटिंग एंड इनकरेज कोऑपरेशन. इनके अंदर कोऑपरेटिव होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है वो काम. दे यूज़ बोथ वर्बल like speaking and non-verbal language like eye contact, body language and to open communication channel with others. इनका ओपन होता है, ये हर एक से बात करते हैं, हर एक से जो है वो उनको थिंक करते हैं और उनको फील करते हैं कि आइदर ये इसने क्या सोचा या ये क्या हुआ. ठीक है. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट इज इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यू माइट लर्न बेटर बाय studying in group, comparing information with others, interviewing experts, relating personal experiences, doing cooperative project. मिल बांट के काम करते हैं जिनके अंदर ये स्किल्स होती है. interpersonal intelligence. Now if we talk about the intrapersonal intelligence, ability to self reflect
एंड बी अवेयर ऑफ वन इनर स्टेट ऑफ बीइंग। अपने अंदर जो उनके अंदर क्वालिटी होगी वो उससे लर्न करेंगे। दीज लर्नर ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इनर फीलिंग्स, ड्रीम्स, रिलेशनशिप्स विद अदर्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। वो देखेंगे मेरे अंदर क्या वीकनेसेस है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, और उसी को ही वो इम्प्रूव करेंगे। वो अपने आप को दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। Now, if you have the strong interpersonal intelligence, you might learn better by avoiding distraction. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, वो बहस करने से, फजूल बात करने से वो परेशान हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट इस्टेब्लिशिंग पर्सनल गोल्स, वो अपने गोल्स खुद ही सेट करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने की बाय देम सेल्फ वो कोशिश करते हैं। वर्किंग अलोन, अकेले काम करना पसंद करते हैं। रिलेटिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। उनका पर्सनल लाइक उनके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो है वो लर्न करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, दिस इज द लास्ट वन। abilities to recognize plant and animal, to make distinction in the natural world, to understand system and define categories। एबिलिटीज़ टू रिकग्नाइज प्लांट, जो नेचुरल थिंग से सीखते हैं, मतलब नेचुरली क्या हो रहा है, नेचुरली इन्वायरमेंट से सीखते हैं, ऐसे उनको नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। इफ़ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यू माइट लर्न बेटर स्टडिंग आउटसाइड, learning in the presence of plant and pets, relating environment issues to topic, smelling, seeing, touching, senses से आप सीख रहे होते हैं, आपके जो भी सेंसेस हैं। ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं, इधर अगर ये रेन हो रही है तो ये क्लाउड कैसा था, तो ये ऐसे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो हैं वो भी हमारे यहाँ पे जो है वो होते हैं नेचुरलिस्टिक। नाउ intelligence versus traditional view versus, okay, this is the last one, natural intelligence. Now you will find out your intelligence ke which character you have own, आपके अंदर कौन से कैरेक्टर्स आपने कौन सा ओन किया हुआ है। अब आप उसको एनालाइज करें कि इधर आप पहले देखें आप किस तरह से लर्निंग कर रहे होते हैं। आप नेचुरल फिनोमिनास को देख के लर्न करते हैं या आप किसी भी ऐसी चीज़ों को देख के लर्न करते हैं। अब आप अपने आप को रियलाइज़ करें, इन 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो अच्छे से देखें और उसके बाद अपने आप को एनालाइज़ करें कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि आप जो है वो लाइक करते हैं इस कैरेक्टर में। ओके, थैंक यू।